السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے ساتھ. جناب السلام جی. ان کے ہمراہ ان کے گارڈ بھی ہیں اور ایک جلسہ جو پہم جاری و ساری ہے UC35. آج آپ کے ایک اہم پارٹیسپینٹ نہیں ہیں. وہ کسی وجہ سے بزی ہیں سر. کس وجہ سے بزی ہیں؟ تاریخ بھگتنے گئے ہیں جی. میاں صاحب یہ کیا معاملات ہے؟ جناب کی حالت ٹھیک ہے سب. اور کی ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کیا کرتا پایا، واہ 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 خوبصورت. کرتے کو چھوڑیں، یہ تاریخیں بھگت رہے ہیں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ. پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے جی ہم نے گرفتار کرنا ہے انہیں، اور آپ کس منہ سے بیرون ملک جا کر لوگوں سے بزنس مانگتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بزنس کرو؟ ٹرکی میں کتنی صبح کی ہوئی ہے. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ ٹرکی جا رہے ہیں؟ ٹرکی کا حال ہم سے بھی برا ہے، اور انہوں نے آپ کو ٹھینگا دکھا دیا آگے. اچھا یار کوئی اور گل نہیں ہو سکتی ادھر؟ چلیں آپ کے ساتھ اور باتیں کر شاباش. نو پالیٹکس. آئی لو یو فار دس آفتاب. میں تنگ آ گیا یقین کر. صبح تو شام پالیٹکس پالیٹکس پالیٹکس، بلکہ یہ چنگا پالیٹکس 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 ایویں ذرا وچ ایڈجسٹ کیتا ہے پالیٹکس. آفتاب میں اس کام سے بہت تنگ ہوں یقین کر. میاں صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر برملا کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے یہ عہدہ سنبھالا ہے نا، اس سے بڑا مجاہدانہ کام کوئی نہیں. آپ اپنی عمر دیکھیں، آپ کینسر سروائیور ہیں اور اس کے باوجود آپ نے یہ کام، یہ بہت بڑا کام ہے. ڈیلیوری آپ سے نہیں ہونی یار. وجہ کی یہ پہلے تو ہوندی تھی، ہون کیوں نہیں؟ آپ جس طرح اقتدار میں آئے ہیں یہ بدنیتی پر مبنی تھا. آپ سن لگا کر اقتدار میں آئے ہیں. آپ نے ایک چلتی حکومت کا، جس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. آپ بتائیں عمران نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ نہیں تو جڑے کیس نے میرے تے رنگیلے نے بنائے. او ہو، یہ آپ کی کرنی آپ کے سامنے آئی ہے. آپ 30 سال جو کچھ کرتے آئے ہیں، مجھے بتائیں نا مقصود چپڑاسی کو عمران لے کے آیا تھا؟ یار وہ نام نہیں لینا جناب اسپیکر. اے لفظ حذف کیتا جائے. نو مور نو مور. میاں صاحب یہاں بیٹھے، میں آپ کی تعریف کر رہا تھا کہ اس سٹیج پر اقتدار کا طلبگار وہ ہو سکتا ہے جو یا تو پاگل ہو یا چور ہو. اچھا جی تے نیازی ہی نہ چکی ہے. نیازی تو چپ ہو گیا، بیک فٹ پہ چلا گیا ہے. نیازی نے تو آپ کو ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیا ہے، جیسے پتنگ ہاتھ سے توڑ دیتے ہیں نا کہ جا موج کر. ورنہ اس نے تو 6 دن کا نوٹس نہیں دیا تھا. وہ کدھر کی لانگ مارچ 2، وہ کدھر گئے بڑے بڑے بلند و بانگ نعرے، وہ کدھر گئے جلسے؟ وہ بیچارہ چپ ساتھ گیا، پیچھے چلا گیا کہ بدبختوں ملک کا بیڑا غرق کر دیا تم نے. ملک کو پہنچا کہاں دیا ہے؟ اس کو نکالے گا کون؟ اس کھائی میں، اس گاب میں پھنسا دیا آپ نے کہ آپ کے ٹائرز تو نظر ہی نہیں آ رہے، آپ کا ریڈیٹر گارے میں پھنسا ہوا ہے. ایسی صورت. میاں صاحب آخر گاڑی تو آپ چلاتے ہیں نا؟ میں بہت چلانا، سٹک شفٹ بھی تے آٹومیٹک بھی. ساری عمر گڈیاں ہی تے چلائیاں نے جناب. ہاں گڈیاں بھی چلائی ہیں تسی، اس میں کوئی شک نہیں. تے اور کی چلایا؟ پرچیاں بھی بڑیاں چلائی ہیں، او یار کالاں بھی بڑیاں چلائی ہیں کہ بڑے میاں صاحب اے منگدے نے، اے فیصلہ دینا، اے فیصلہ دینا. صبح آپ ٹیپ پر ہیں میاں صاحب. او فیک ہے جناب، ڈیپ فیک. دیٹ از واٹ یو کال ڈیپ فیک. میں ویسے نیازی نال اتفاق نہیں کرتا جناب، لیکن اس ڈیپ فیک تے وی آر آن دا سیم پیج. آپ کو جواب مل گیا ہے کہ نیازی کیوں چپ ہو گیا؟ انتظار کر رہے ہیں جناب، چھائی لا کے بیٹھے ہیں. کس چیز کی چھائی؟ ایسی کوئی ہور نالائکی کریے، لوگ کی باہر نکلن آ کے حکومت تے قبضہ کر رہے ہیں. چلو آپ یہ تو مان رہے ہیں نا کہ پہلے بھی آپ نے نالائکیاں کی ہیں. آپ نے سب سے بڑی نالائکی پتہ کیا کی تھی؟ کیڑی ہے بھلا؟ آپ نے یہ حکومت ایکسیپٹ کی. آفتاب بالکل ٹھیک گل کر. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت اچھے طریقے. بڑے میاں صاحب آپ سے زیادہ دانا ہیں. یار لگ دے نہیں سے لیکن ہے. واقعی ہم کسی کو نہیں لگتے تھے، آپ نے خود مجھے بتا رکھا ہے. یہ نہیں کہ ڈسکلوز کر رہا ہوں یا آپ بھائیوں کو آپس میں دور کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا تھا آج سے کوئی 5-7 سال ادھر کی بات ہے، ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے تھے ہم، کہ میاں صاحب کیا وجہ ہے کہ ووٹ سارا بڑے میاں صاحب کا ہے، محنت آپ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ میں ریپلشن ہے، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے صاف گوئی سے کام لیا تھا کہ معاملات کو سمجھتا میں ہوں کیونکہ میری سیاست تھڑے کی سیاست ہے. بڑے میاں صاحب نے تو تھڑے کی شکل بھی نہیں دیکھی کبھی. These were his words. However, ووٹ سارے کا سارا میرے بھائی کا ہے، اور آپ یقین کریں آفتاب صاحب میں نے اس سے زیادہ درویش صفت آدمی آج تک نہیں دیکھا. یہ بڑے میاں صاحب کی بات کر رہے تھے، درویش صفت آدمی جس کی گھڑی کی قیمت $4.6 ملین ہے، جو اس وقت اربوں روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ ہوتی درویشی. او یار میرا کی قصور ہے اور رہ رہے ہیں. آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ 4 کیمپ آفیسز چلا رہے ہیں آپ. ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? کی کھلا رہا ہے؟ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, نہیں رہتے آئے واپس آئے.
इकोनॉमी पे आए, मैं आज बात करता हूँ इकोनॉमी पे। ये बरूदी सुरंगे न्याजी बिछा के गया था हमारे लिए, हुण हौली हौली फट रहे ने पैर। ए माइन ते रखिया, चावा जंप मार के उत्ते सीधा ये ये क्या था? ए पेट्रोल बम। अच्छा, जरा बिजली बॉम्ब पे भी आए, जरा गैस बॉम्ब पे भी आए, एडिबल ऑयल बॉम्ब पे आए। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। हाँ, अभी तो काम बद है, फिर बदतर होगा, फिर बदतरीन होगा, उसका इंतजार कर रहे हो। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੋ। अच्छा, हमजा साहब की जगह पे बैठा कौन है? आफ्ताब साहब, ये सबूत है इस बात का कि हमारी पार्टी वोट को इज्जत देती है। क्या खूबसूरत बात जनाब। वैसे है कौन दरबारा तो जुतियां चुकने वाला? ये पाकिस्तान का सबसे गरीब आदमी। आपको याद है चोटी कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने क्या मशवरा दिया था मुशर्रफ और वाजपेयी को? हाँ जी, तो वो क्या था? 2001 में जो आगरा कॉन्फ्रेंस हुई थी, चोटी कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, समिट थी, वो टॉक्स थी कि आपस में जो एक बेलिजरेंट आपका अंदाज है, जो आप हर वक्त हम ठोंक के एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, उसको टोन डाउन करें, न्यूट्रलाइज करें, प्यार मोहब्बत की बात करें। तो मशवरा दिया उसने बहुत खूबसूरत अपनी स्पीच में ना, जॉइंट था वो सेशन, जिसका तर्जुमा बहरहाल इस तरह था कि मेरी आपसे ये विनती है कि कल जब आप टॉक्स का सेशन रिज्यूम करने जाएं तो दोनों अपनी आंखों के सामने बर्रे सगीर के सबसे गरीब शख्स का चेहरा ले आए। वाह, क्या इफेक्टिव बात थी, दैट गेव अस ऑल गूज बम्प्स। और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने बहुत तारीफ की थी कि ये एक फिक्रा था जिसने मुझे फिर से एक तवानाई बख्शी, और मैं सिद्ध के दिल से कोशिश करने गया था कि मैं किसी तरह से, लेकिन हॉक्स इधर भी थे, हॉक्स उधर भी थे, तो ये गरीब आदमी आप लेकर आए हैं। आफ्ताब साहब, ये हमजा साहब के हलके का सबसे गरीब आदमी है। हम इसे आज इसलिए यहां लाए हैं कि लोगों को बता सकें कि ये आज भी हमारे साथ है और मरते दम तक हमारे साथ रहेंगे। अच्छा जी, आप कहाँ रहते हैं? हमजा साहब के हल्के च में रहना जी। तो ये महंगाई को किस तरह फेस कर रहे हैं? बस जी इंतजार कर रहे हैं। हालात की बेहतरी का? नहीं जी, और किसका? मौत का जी। ओह, इसका क्या मतलब है? सर कोई इलाज नहीं गा सवाए मौत दे। इस मुल्क से सिर्फ 2 चीज़ां परमानेंट है ने, एक बकवास ते दूसरी मौत। ओए होए, बकवास से क्या मुराद है भाई? झूठे वादे तिफल तसलियां। हाँ हाँ, मैं दस नहीं सकता साडे घर दा की हाल है, मेरे दिल दा की हाल है। तो वोट फिर इन्हें नहीं दोगे तुम? मैं वोट गटर च सुट दियांगा, इन्हां नूं नहीं दियांगा जी। मुझे लगता है इस दफा गटर फुल हो जाने। कम से कम लाहौर दे गटर ते फुल हो जाने मियां साहब। अच्छा जी, पहले मैं खुद मामले में कूद चुका हूं, मैं दसो इनू कौन लेके आया? जमान जिक्रिया लेके आए अन्नी रे तेन कोई होर को चजदा बंदा नहीं लभया ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰੇ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। इत्थे की मौत पई ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। मेरे भाई आपका सॉफ्टवेयर हिल गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए हिल गया है। सारी कौम दा सॉफ्टवेयर हिल गया है। वाह 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 मियां साहब, मेरा अपना हिल गया जनाब। वैसे आपको इलेक्शंस के क्या हालात नजर आ रहे हैं? इलेक्शन के बगैर कोई चारा नहीं है, और जो इलेक्शन जीता उससे बड़ा बेचारा कोई नहीं। और आपको लगता है इलेक्शन सितंबर में होंगे? इलेक्शन होंगे सितंबर में, अक्टूबर में। तब पर मुझे इलेक्शन से भी कोई उम्मीद नहीं। नहीं, इलेक्शन तो होगा। उम्मीद की एक किरण जिसे यूटिलाइज करना चाहेगी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, वो ये है कि अगर कोई पॉपुलर लीडर, एक्सट्रीमली पॉपुलर लीडर, चाहे मियां नवाज शरीफ क्यों ना हो, भले से वो जरदारी क्यों ना हो, इक़्तिदार में आता है, बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आता है, वो विद इन 90 डेज जी इंतहाई इनकलाबी कदम उठाए। इनकलाबी कदम क्या है? जिस शख्स के पीछे 70% मैंडेट है, जी उसके साथ डील करते हुए फॉरेन कंट्रीज अच्छा फील करेंगे कि नहीं? जी उन्हें कोई सॉवरेन गारंटीज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? इन्वेस्टमेंट आते हुए परेशान नहीं होगी, नए एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट खुलेंगे, जैसे टूरिज्म है। जी टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा था जो बिल्कुल ठप हो चुका है। इसी तरह रिक्वेस्ट, मियां साहब आप ये रिक्वेस्ट कैमरे की आंख में आंख डाल के कर सकते हैं आवाम से। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, मैं तैयार हां। लोगों से डिमांड करें कि नंबर 1 वो हर हाल में बचत का आगाज करें। अच्छी गल है। अगली दसो। दूसरा ये कि पेट्रोल कंजम्पशन में
50% रिडक्शन करें। ਇਹ ਵੀ बेहतरीन गल है। दीगर चीजें जो इंपोर्ट होती हैं 50% रिड्यूस करना। और आखिरी बात है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जी वो आपके रोशन अकाउंट में मजीद क्या डालता है। अरे मेरी मनणगे नहीं, मैं करते लेना। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपकी कोई नहीं मानेगा, लोकल्स नहीं मानेंगे, जो बाहर बैठे हैं वो पैसे निकलवा रहे हैं, क्योंकि आपने फिर डॉलरों के साथ वही सलूक करना है वो जो आपने कर्ज उतारो मुल्क संवारो के साथ किया था। आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपके घर पे भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। चुनांचे उस शख्स का इंतजार करें जिसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जो कल्ट बन चुका है, कल्ट। अब दो चीजें हैं, एक तरफ है हल्क जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं और दूसरी तरफ है कल्ट। कल्ट वो है जिसके पीछे अवाम। पूरा मुल्क है, अवाम है, खास तौर पे बरूने मुल्क जो बैठे हुए हैं, वो चाहे मुट्ठी भर भी है ना, इस वक्त ऑक्सीजन का सिलेंडर उनके पास है, इसमें कोई शक नहीं कि वो अपना रोल प्ले, लेकिन उनके साथ सलूक क्या हो रहा है, उनको वोट देने का हक, वो उसके ऊपर आप समरिया बना के भेज रहे हैं प्रेसिडेंट को। वाह 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 मियां साहब। ओ यार अलवी साहब ने चुक के बाहर सुटती समरी यार। अलवी साहब ने क्या सुट्टी है, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। यस ये भी फेंक देता, क्यों फेंक देता है? इसलिए कि मुहिब्बे वतन है, उसे पता है कि ये कितने अहम लोग हैं और बहुत कुछ है उसमें। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ बेचारा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मियां साहब ये तो लगता है वो गा रहे हैं जो आपको लेके आए थे, लुट तो वो गए हैं बेचारे। तो लुट गए। बकवास मत करो। क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो रहा है, वो खुद परेशान है। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੇ हाँ जी अमरीकियों की गल कर रहे हैं। अभी तक फोन आया नहीं वैसे अजय तक। सुनिए कि वो करना चाह रहे हैं। फिर किया क्यों नहीं? वो मेरे ख्याल मायूस हो गया। किससे? न्याजी तो और कितने तुम क्यों न्याजी ने अब क्या किया है? ए जो कर रहे हैं जलसे जुलूस लॉन्ग मार्च, अमरीकी इस गल को पसंद नहीं करते। नॉट एट ऑल। आपका भाई जितना अमरीकियों को जानता है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। वाह वाह वाह। अच्छा, अमरीका को भी उतना ही जानते हैं आप? कि मैं इन्होंने जानना तो उन्होंने भी। आप जानते तो बहुत है वैसे। बहुत शुक्रिया। वो जो मैं बात कर रहा था बीच में रहेगी कि मुझे आप पे रहम क्यों आ रहा है, अल्लाह खैर होन क्यों आ रहा है कि आपकी ज़हनी हालत ना, जिस तरह की आप गुफ्तगू करें, छोटे छोटे क्लिप्स आपके डिजिटल मीडिया पे पड़े हैं कि कभी अब वो डांग वाली बात जो मंजी डांग, आपको नहीं पता कि मंजी थले डांग फेरी थी? मियां साहब आपने डांग का बेजा इस्तेमाल कर रखा है उसमें। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬੁਲੀ ਸੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਂਗ ਵੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਦੀ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ ਤੂੰ ਫੇਰੀ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਪਾੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। सही बात। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖੇਸੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤੀ। ये बड़े तुम्हारे से लड़ियां करता रहा है वो। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। झटका लगा दिया हमको, झटका दिया है क्यों हमको खाना, वो हमको खाना। यार आप माइक छोड़ें, होर के नु बुलाना जी, हमजा साहब ते है कोई ने। आप आइए यार, आप आए, आइए भाई साइड पे हो जाओ। जी आपकी तालियों की गूंज में पाकिस्तान के गुर्बतशुदा आदमी नवीद खान। कौन शुदा? गुर्बतशुदा बोतल पीते हैं साल हो गया जनाब। वो डाला लेके बैठे उथे नाल। पिछले साल एक बोतल ली सी जी, ਉਹ ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਉਬਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੋਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੂਸੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। वो क्यों? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਆਇਆ ਉਹ ਚ ਪਵਾਉਣਾ ਮੈਂ। तो आके फिर क्या करोगे? ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ऐसी ड्रामेबाजी ना करो, ये बातें करने वाली। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ ਲਿਆ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਬੱਕਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। पहले कभी कुर्बानी करते थे? ਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ये देखो ना, ये है मेल्ट डाउन। बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए सब। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ 7 ਘਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਬੱਕਰਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ। ਆਮ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਬੱਕਰਾ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮਰੀ। ਕਰੰਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, क्यों? ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਸੀ। 560 रुपए ਦਾ ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। कुकिंग ऑयल। ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ 110 रुपए किलो ਆਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, 400 रुपए किलो अदरक हो गया ਉਹ जनाब। ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁੰਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਅਦਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। सुंड क्या है? डॉक्टर साहब, सुंड जो होती है ना, वो ड्राइड जिंजर को कहते हैं। ड्राइड जिंजर, अदरक खुश्क हो जाती है ना। हाँ, उसको सुंड कहते हैं। आप चूंकि पेरिस में रहती है, वहाँ पे सुंड नहीं होती, यहाँ पे सुंड होती है, यू नो। समझ आ गई आपको? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁੰਡ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਡ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੰਡ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੁੰਡ ਖਾਧੀ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਛਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ, ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। क्यों? ਨਾਲਾ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। लो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਂਗਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਚੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਰੇ ਗੱਲ- ਲਾ ਕੇ ਓਏ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। पर्वत पे छाई काली घटा और बोली हवा, इलू इलू क्या है ये इलू इलू। आपकी क्लैपों की गूंज में तशरीफ ला रहे हैं इस लाहौर की आन शान, मियां साहब के दिल की धड़कन, जमान जिक्रिया। ये ओ जुक्रिया साहब, सोच के बोलना है आपने। सर जहाँ पे दिल की जनाब, धड़कनें ऐसी मोहतरम होंगी। प्लीज मोहतरम 2 मिनट की खामोशी। मियां साहब मैं तुहानू दसां जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਲਾ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ए मैं नहीं की थी ना, महंगाई इन्होंने की थी, इन्होंने। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ओ सॉरी, इधर नहीं, इधर इधर, उन्होंने। उधर कौन है? ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। आई शाबाश। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਤੂੰ ਨੂਨ 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 ਨੂਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਨੂਨ 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 ਨੂਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ IMF ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ IMF ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਮੈਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਾ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰਕੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਨੂਨ 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 ਨੂਨ, ये सब आप तो ना करें प्लीज। ਤੂੰ ਨੂਨ 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 ਨੂਨ। ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪੁਰਬਖਸ਼ ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि मशहूर मजमून शौहर को कैसे कत्ल किया जाए की मुसन्निफा खुद भी शौहर के कत्ल में गिरफ्तार कर ली गई। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲਿਖਣ ਦੀ? पहले मजमून लिखा गया या शौहर कत्ल हुआ? लॉन्ग टाइम बैक उसने मजमून लिखा था कि शौहर को कैसे कत्ल किया जाए। काफ़ी साल बाद इसका शौहर इंतहाई पुरस्रार हालात में जॉब पे जाता हुआ 2 अदद गोलियां खा बैठा, गोलियां सर में। अच्छा, मैं क्या शायद पैनाडोल की 9 मैं mm भी यही बोला आपने, ऐसे ही 2 दत गोलियां बस वो खा बैठा। 9 mm की गोलियां सर में उतार दी गई। अब बिल्कुल इसी तरह इसने अपने मजमून में लिख रखा था कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस वगैरह है उसकी, अगर कोई लालच है, वो आपको तंग करता है, आपकी जान नहीं छोड़ता, तो बेस्ट तरीका यही है कि 1 2 3 4 जो मुख्तलिफ तरीके कत्ल के लिए उसने सजेस्ट किए, उनमें सर फहरिस्त पिस्टल का इस्तेमाल था, और वो भी 9 mm। इस खातून के शौहर की 14 लाख यानी 1.4 मिलियन डॉलर्स की इंश्योरेंस थी। तो चूंकि बेनिफिशरी ये थी, शक किसी पे आया, ये सच भी था। ज्यूरी ने इसके खिलाफ फैसला दे दिया कि गिल्टी यही है, लेकिन उसका वकील कह रहा है कि हम अगली अदालत में अपील करेंगे। ये भी तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, जी। और ये प्रोसीजर पूरा होना चाहिए,
क्योंकि अगर 1 in a million चांस भी है कि वो बेकसूर है तो इट्स वर्थ इट। तो सर ये वाकया कहाँ का है? पोर्टलैंड, ऑरेगन, ऑरेगन, पोर्टलैंड, सारे यूरोप, अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका, एक अमेरिका और एक इंडिया में इस किस्म के काफ़ी वाक़यात। आजकल अमेरिका में तो फायरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन वोग है, फैशन है वहाँ पे। किस किस्म की जी फायरिंग? मैं पबजी देखा करता था, मेरी उम्र 17 साल है, मैं बस डिप्रेशन का शिकार हूँ, मेरे पेरेंट्स ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने वो किया, तो मैंने सोचा कि ज़िंदगी को ख़त्म किया जाए तो ज़िंदगी को ख़त्म ऐसे तो ना किया जाए। आई शुड मेक अ स्टेटमेंट फर्स्ट, आई शुड किल सम पीपल। चलो, ये हरकत वही कर सकता है जिसके यहाँ एयर आफ्टर का कॉन्सेप्ट ही कोई ना हो। खौफ ना हो। ये ज़िंदगी असल जो है, जो प्रॉपर लाइफ है, वो तो शुरू इस लकीर को क्रॉस करते होनी है और आप उसका एहतमाम करने, बंदोबस्त करने इस दुनिया में आए हैं। ये लेबॉरेटरी है। तो व्हाट इफ ये ख्वाब हो और जिंदगी तब शुरू होनी है? तो ये चूंकि एक तरह की रिहर्सल है, जी, तो इसे ख्वाब की शक्ल दे दें, इसे ख्वाबीदगी का को आलम, लेकिन ये है तैयारी। ये पता सिर्फ उसी को है जिसको ये मालूम हो कि असल ज़िंदगी तो शुरू ही अब होनी है। सर वैसे किस तरह सुनी? मैं तो सुना मार के बंदा कब्र चला जाता खत्म। नहीं, कब्र में तो सारे जाते हैं। हाँ जी, कब्र एक आलम ख्वाब है। आप सो रहे होते हैं ना, तो आपने उठना है जिस दिन सूर फूंकी जाएगी, जिस दिन हशर बर्पा होगा, उस दिन तक आप सोए हुए बंदे को पता ही नहीं होता कि वो 1 घंटा सोया है या 1 सदी सोया। हमारी तरफ क्या कहते हैं? और सुता मोया इको जाए। सुत्ता मोया इक्को जया। अक्सर लोग नींद में मर जाते हैं, जी सर। उनका हार्ट फटता है। जी सर। नींद में आप एक ऐसे जानवर के आगे लग के भाग रहे हो, यानी आप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? कुछ लोग हैं जो शेर से, चीते से, लगड़ बगड़ से, और कुछ लोग हैं जो कमोडो ड्रैगन से बहुत डरते हैं। आप तसव्वुर करें आपके पीछे कमोडो ड्रैगन भाग रहा है, हाँ भाई, या आपके पीछे ब्लैक मांबा भाग रहा है और आपको पता है कि ये मांबा है। ज्यादातर लोग वैसे जो ख्वाब में थर थर कांप रहे होते हैं, पसीने पसीने और चीखते हुए उठ जाते हैं, उनके पीछे सांप भाग रहा होता है। जी, तो सांप ने जब आपको पकड़ लिया, डस लिया या काबू किया, उस वक्त आपका दिल फट जाता है। ये वही कैफियत है। जलालपुर पीरां लगे हैं जी ड्रामा करने से। चलो जी, अब फिर कोई मनहूस वाकया, इसका Struggle। बैग चोरी हो गया होगा। यहाँ प्रोड्यूसर ने इन्हू ख्वाब च पैसे दे के ते बाद च मुकर गया। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਡਰੂਮਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌ ਗਏ ਆ। ਘੂ ਕੱਖ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਗਈ। ओए, ਡੱਬ 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 ਪੂਰੀ ਖੜਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ੰਜ਼ਲਾ ਜੇ। नीरो ने अपनी बीवी को मार दिया था, पता ना आपको? नीरो एक रोमन एम्परर था, बड़ा घटिया शख्स था, हिला हुआ था, पागल था ये। सीधी सी बात, एक पागल को हुक्मरान बना दोगे तो यही होगा। तो जज्बाती सा आदमी था, वो बीवी के मुंह से निकल गया कि तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है ना, उसकी अदाकारी या उसकी स्पीच डिलीवरी वो अच्छी थी, लेकिन उस कैलिबर की नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। हैं? तो मार दिया। यानी तुम्हारे ख्याल में मैं महज बकवास कर रहा था, मैं वक्त ज़ाया कर रहा था? उसे मारने लगा। मारते मारते ना अपनी तरफ से उसे कत्ल नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी गर्दन पे पैर मारा उसका मनका टूट गया। अब उससे ये इश्क करता था। ओए, अल्लाह ने इसको सज़ा देखें कैसी दी कि फिर उसके इश्क में पागल हो गया और इसने ऐलान कर दिया कि इसकी शक्ल की औरत अगर नहीं होगी तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूँ। तो सारी सरकार, दरबार, ब्यूरोक्रेसी, फौज वो तलाश करती, दूर उफ्तादा उस एक नुक्कर से उसका बीवी का हम शक्ल मिला, लेकिन ख्वाजा सरा। ओह, एंड ही मैरिड द ख्वाजा सरा। व्हाट अ साइकोपैथ। लेकिन व्हाट अ पनिशमेंट। Yes. फिर रोया करता था उसको देख देख के अपने आप को। वो खुद फरेबी का शिकार हो गया ना कि ये वही है और मेरे पास आ गई है, वापस आ गई। सर जैसे ओथेलो, ओथेलो के साथ भी यही कुछ हुआ। बीवी को मार के उसे रियलाइज होता है। और फिर उम्र भर का रोना है। उम्र भर ये नहीं है, असल उम्र मैं कह रहा हूँ शुरू ही बाद में होनी है। जी 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 जी। और वो लामुतनाही है। रंगीला साहब, आपको तो दिन में मेरे ख्याल से 70 को ख्वाब आते होंगे, क्योंकि आप जागते ही बहुत कम है। ऐसा है आपके साथ? मुझे एक दफा ख्वाब आया जी कि मैं ना पहाड़ों पे भाग रहा हूँ। पहाड़ों पे और इनके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तक 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 तक। मेरे पीछे शेर लगा हुआ है और मैं छलांग मार के कभी इस पहाड़ पे इस पर ਮੱਠਾ ਛੇਰ ਖੋਤੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਐਡਾ ਥੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ।
आखिर ना जी मैं भागते भागते एक बड़े पहाड़ पे गया हूँ तो आगे जगह नहीं मिली, आगे अंधेरा है, तो फिर मैंने छलांग लगा दी। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅੰਨੀ ਦਿਆ, ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰ। रंगीला साहब, आपके बड़ों ने कभी प्लैनेट ऑफ द एप्स में काम किया? ਅੱਛਾ ਹੈ ਖੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ, ਮਾਰਖੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ। Khwateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Khwateen Hazrat, काफी दिन बाद आज हम आपको लिए चलेंगे पार्लिमानी टी स्टॉल। बिस्मिल्लाह भाईजान, क्या कहने, काफी अरसे बाद चक्कर लाया जी। तुमने जगह ही चेंज कर ली, वो पार्लियामेंट में थे, तुम अब यहाँ आ गए हो। ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕੋ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। अब क्या हुआ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰ ਜੀ। इससे भी ज्यादा गरीब थी। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਫਾਇਤਸ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਰੀਅਟ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, अच्छा, ਤਰੀਨਾ ਤੋਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। फिर तुमने क्या किया? ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। तो अब किधर हो? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਮਕੀ ਮਟਨ, ਆਹਾ ਸਿਮਕੀ ਮਟਨ ਛੋਟਾ ਭਾਜੀ। लेकिन यहाँ तो पॉलिटिशियंस आते ही नहीं होंगे। ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਰੇ ਵੇਖੋ, साथ कौन बैठा है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਟਰਗਲੀ ਫਨਕਾਰ, ओ, ये तो शाहरुख खान साहब नहीं है। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦਾ। अच्छा, हाँ जी, शाहरुख चीमा नाम है इसका। ਹਾਂਜੀ अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह, हाउ आर यू आफ्ताब जी? गुड गुड यार, आप बिल्कुल हमारे शाहरुख खान जैसे हैं। शाहरुख चीमा है नाम आपका? शाहरुख चीमा। यार आप तो बड़े उम्दा आदमी लगते हैं। मैं बड़े बुरे हालों में था, ये कोट मैंने यहाँ से पहना है। ਅੱਛਾ 10 ਇੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। क्या मतलब है? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਐਡੀ ਮੈਲੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वो शलवार कमीज माया मेम साहब के दौर की थी, इसी की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, तो फिर SRC हो गया ये शाहरुख चीमा। ਓਏ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਡੰਮੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡੇ ਹੋ। तुसी कौन हो भाजी? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਹੈ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਿਲकुल ही ਭੁੰਜੇ ਜਾ ਪਈ। हाँ वाकई ये भी एक मसला है, लेकिन आपको कभी देखा नहीं। कौन साहब है आप? परवेज चूचा। क्या नाम है इसका? ਪਰਵੇਜ਼ ਚੂਚਾ। चूचा। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਬਾਰੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, बारी स्टूडियो थिएटर बन गया? स्टूडियो में भी थिएटर बन गया है। ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ नहीं, ये तो अच्छी बात है। ਉੱਥੇ ਮਸਾਫਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? क्या है? मसाफात। मसाफात अमल। ਯੈਸ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੋਮੀ ਰਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਮਾ ਮੈਡਮ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ 'ਚ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਟੀਚਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। बहुत ही बोर है यार। अस्सलाम वालेकुम। ਚਲੋ काका उधर चला जा तू। हेलो आफिक, हेलो। वाई सो लो। बस इनके हालात देख के मैं तो बड़ा दुखी हो रहा हूँ, और आपके भी को बहुत अच्छे नहीं लग रहे। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਖੈਰ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ? यार की खैर दसा देख नहीं रहा, मेरा हुलिया तेन अंदाजा हो जाना चाहिए। अब क्या मसला है? यार कम ही कोई नहीं हैगा, महंगाई एडी ज्यादा हो गई है, समझ ही नहीं आती जाना किधर। आफिक, एक्टिंग की फील्ड से मैं तो घबरा कर यूट्यूब शुरू किया था और मैंने एक नई खबर सुन ली। YouTube पर भी टैक्स लगने वाला है। वैसे ये तो बहुत जुल्म नहीं है? बहुत जुल्म है, और इसके खिलाफ मोस्ट प्रोबेबली ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, वो शायद कोर्ट में जाएंगे। ए मेरी कजन है आफ्ताब साहब, 15 साल पहले बड़ी वड्डी अदाकारा थी। ओए, फिर? कुछ नहीं, हुण घरां ही काम करती फिरती, काम ही कोई नहीं। नहीं तो कहीं और जॉब शॉप कर लेती। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ओ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। उसे क्या बीमारी? ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਿਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, तम्बाकू वाले पान खांदा सी। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बच्चे कितने हैं? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅਜੇ ਭਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਧਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। क्या वजह? ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਦਾ। ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ। वैसे ये बड़ा ही माकूल आदमी लगता है ये चूचा साहब। क्या नाम है आपका? चूचा, परवेज चूचा। ਭਾਈਜਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। तुम एक काम करो, ਮੈਂ 2 ਪਤੀਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲਾਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾਓ ਜੇ ਸਮਝਾਓ। पतीलियां तो आपके पास पहले ही हैं। अच्छा नहीं ना, तुम्हें 2 पतीले रखने पड़ेंगे। कितने पैसे कमाते हो? ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ 500-700 ਹੋਰ ਕੀ। बस इतना बचता है। ਹਾਂਜੀ तुम एक चिंची लो बड़ी अच्छी, ਲੈ ਲਿਆ। और पीछे रिक्शा नहीं, लोडर रिक्शा। ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
लोडर। अच्छा जी, मैं तुम्हारी बात करवा देता हूँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। अच्छा जी, तुमने सीमेंट, ईंटें, बजरी, इस तरह की चीजें, जो कुछ गधा गाड़ी करती थी इस वक्त वो चिंची वाला करता है और उससे मेरा ख्याल 10 टाइम्स ज्यादा पैसे कमाता है। कोई मशक्कत वाला काम, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਫੀਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। यहाँ पार्टी पे आए हो तुम? ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਧੁੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਖਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਡਰ ਜਾ ਬਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਪਤੀਲਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀਲੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਮ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। अब नहीं, अब तुमने वही चलाना है, वो ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਾ ਫਿਰ। तुम्हारा बाप भी चलाएगा। ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? क्यों? ਭਾਈ ਟੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ? फनकार दी कोई जिंदगी नहीं। चुप है, फनकार दी कोई जिंदगी नहीं। 40 साल लग जाते आप बदलना ही नहीं चाहते। और नहीं बदलना नहीं चाहते, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ही बड़ी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 40 साल ला के हिट हुंदा, गरीब 50 साल ला के मर जांदा। ठीक है, 10 साल बहुत है। कादे 10 साल उसने कमाई की ना, ते पिछले कर्जे ओदे प्यो ने लाने ने। तो पीछे से क्या कर्जे किस चीज के चढ़े? पहले हत्थ ते उन्हें अपने 3 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 16 ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। 3 ਵਿਆਹਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦੇ 6 ਨੇ। ਤੇ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਫਿਕਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸਬਾ ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। आफ्ताब साहब, साढ़े वास्ते हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर दी पई? आपने क्या किया अपने लिए? इतने बच्चे पैदा कर लिए, आपको ख्याल नहीं आया? हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, ये जो आबादी है बेहंगम बेलगाम आबादी, ये वसाइल कम नहीं है, ये वसाइल मसाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब कमाने वाले थोड़े और खाने वाले ज्यादा होते हैं। सर 2000 वाला के चक्कर है, कहंदे ने हुकूमत देंदी पई है। आप क्यों उस 2000 पे डिपेंड करती हैं? आप कोई काम करें, ढंग का काम करें। सर काम ते लभदा कोई नहीं, मैं ते करना चाहनी हां। आपको आता क्या है करना? मैं घर दे सारे काम कर लेनी हां, सास खाना पकाना आता है? बेहतरीन डाडा सोहना करके खाना बनानी हां। ओह, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਪਤੀਲੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਏ। ਸ਼ਫਕਤ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। डॉक्टर अमजद साकिब, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਬਿਕ को ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे शफकत भी बेचारा साबिक ही हो गया, शफकत महमूद ही इज आउट। और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत तगड़े लोग, डॉक्टर यास्मीन राशिद एंड हमाद अजहर। हमाद अजहर तो बहुत प्रॉमिस है उसमें, बहुत ज्यादा करंट है। कैसी गल, उन्हें जेंडर का भी ख्याल नहीं रखना, उन्होंने 4 बजे उठा देना। 4 बजे उठ लोगी तो क्या है, 4 बजे उठ के मेहनत नहीं होती? आजकल 4:58 है नमाज का आखिरी टाइम, तो 4 बजे उठे, अपने काम को सीधा पदरा करे, नमाज पढ़े, और इस दौरान दिन चढ़ जाता है। बल्कि एक काम करो, तुम कोलैब क्यों नहीं करते उनके साथ? ये कुकिंग करेंगी, आप भी कुछ बनाते हैं। मेरे तो अच्छा दाल चावल साउथ एशिया को नहीं बनाता। आफी मामा जी सही कह रहे हैं। ले जी, दाल चावल आप बनाएं। आप क्या बनाती हैं? आफी मैं मीठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। ਐਨਕ कैसी लाई माशाल्लाह, आज तो सादक बैंड वाले दी ऐनक। सूजी का हलवा बनाएं या जर्दा बनाएं? जर्दा इज बेटर। मैं हलीब बना लेनी हां बड़ी आला, मैं बौंग भी बना लेनी हां। 4 दिन बोंग, 2 दिन हलीम। ले जी, अभी मैं अंडा भी नहीं बना सकता, मेरे ना वेख। तो तुम रिक्शा तो ले आओगे ना? मैं कुछ है वो नहीं बना रिक्शा, वही रिक्शा लोडर। उस लोडर में आपने लोड करना है सारा कुछ, और मामा जी आप साथ होंगे, और ये होगा। लेकिन आफी मेरे YouTube चैनल का क्या होगा? ये तो मैंने बता दिया आपको कि 30% इज आउटरेजस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जी बाकी 5-7% अगर आपसे सरकार मांगती है तो आप अपने मुल्क को दे रहे हैं, ऐसी क्या बात? आफी हम ही हैं जो डॉलर्स बाहर से ला रहे कोई हैं। बात नहीं, अल्लाह ताला आपके डॉलरों में और बरकत डालेगा। मेरी सजेशन ये होगी इन्हें कि कम से कम रखें, ताकि दोनों पार्टीज पे बर्डन ना हो। सर, जहाँ इतनी चीजों पर देते हैं यहाँ भी दे दें, लेकिन वो जाए तो मुल्क के लिए ना। नहीं, मुल्क ये के क्या लिए गारंटी है? ओहो, वो बातें खत्म के मुल्क के लिए नहीं जाता था, अब मुल्क के लिए ही जाएगा, फिक्र ना करें। फर्क सिर्फ ये पड़ रहा है कि टैक्स से बचने के लिए पहले 2 नंबरी लोग कर लेते थे। जी जो टैक्स डिपार्टमेंट से लोग आते थे ना, जी सर, उनकी बीक वेट कर दिया करते थे, वो कनाइव करके एक साइड पे चले जाते थे, मुकमुका हो जाता था। अब मुकमुका नहीं होगा, टैक्स नेट एक्सपैंड होगा, बहुत बेहतरी आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। और टैक्स देना चाहिए, पाकिस्तान को दे रहे हैं भाई, अपनी माँ को दे रहे हैं आप। बिल्कुल सर। ऐसी क्या बात है? क्यों हाथ फैला रहे हो, क्यों मांग रहे हो हर एक से? इसलिए मांग रहे हो
कि टैक्स नहीं देते। ये महंगाई आज इसलिए फेस कर रहे हैं हम कि हमारी अक्सरियत टैक्स से मुबर्रा समझती है अपने आप को। जी आफ्ताब साहब, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यही 2 पतीले खरीद के ना ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, क्या ਹਵਾ ਤੇ ਚਾਹ। आप और चीमा साहब कोलैब करें। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ। चूचा जी आप भी कुछ करना चाहते हैं? अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट हो भाई, जागो, एक मिनट ओए, चुप कर। तमीज से बात करनी मेरे साथ। ओए मेरे साथ तमीज से बात करनी, मैं कह रहा हूँ। देखा ना? ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? बात सुनो, ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। चाय तो पिलाओ। ये हाल नो राजी ने ओ बिस्मिल्लाह, क्या कहने, आजो आजो। ये कौन है? ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ। वाह, ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਰੜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। तो अब क्या करते हैं? ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी। ਔਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਐਸਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। बाबेक? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਬੱਬੂ ਪ੍ਰਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਸਰ ਚਿਨੋਟੀ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਬਾਬਾ ਦਿਖਾ ਜਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। मैं क्या घर वाले गारी हो ਘਾਰੀਆਂ जानते हो कमा से भी जाया करो अखियां वाले हो ओ भाई हो पै गई पैसियां दी लोड़ अखियां वाले हो ओ अखियां वाले हो ओ अखियां वाले हो भाई हो पै गई पैसियां दी लोड़। अल्लाह का ਇਹ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਅੰਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ। ਓਏ ਅੰਨੀ ਦਿਆ तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ਭਾਜੀਓ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਦਿਓ ਬੈ। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म आग का दरिया से लिया है। मौसीकी तरतीब दी है गुलाम नबी अब्दुल लतीफ़ ने। जोश मलिया आबादी के बहुत खूबसूरत लिरिक्स गाया मैडम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज़। हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। जहाँ की हर शाम एक देवी, जहाँ की हर सुबह हो एक
आ रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, डगर डगर है तमाम सहरा, कली कली जगमगा रही है, हवा से मोती बरस रहे हैं। ब्रावा ब्रावा